Continuing the previous lecture, we discussed about the first law of the thermodynamics, how Q it is related with the change in internal energy and the work done. Also we discussed that it is the reversible system that we discuss mostly, and in a reversible system the work done it is maximum work done. Why it is maximum work done? रीजन बीइंग कि जब भी एक्सपेंशन होनी है तो एक्सपेंशन के लिए इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा सा एक्सेस होना चाहिए. तो अगर मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर को आप किसी भी वैल्यू से फिक्स करते हो तो इंटरनल की वैल्यू उससे थोड़ी सी एक्सेस होगी, तो उससे ज्यादा एक्सेस उसको नहीं किया जा सकता है. वाई नॉट? अगर उससे ज्यादा उसको आप एक्सेस करते हो तो क्या होगा, वो सिस्टम फास्ट हो जाएगा, और जो सिस्टम फास्ट है वो फिर रिवर्सिबल नहीं बचा. सो दिस मीन whenever we need the reversible conditions, then whatever is the work done in case of expansion, it is the maximum work done. How mathematically we can calculate it? Very simple. The dW that is written here PdV, and if we integrate this factor here PdV, then I have to substitute for the P from the that ideal gas equation. PV is equal to RT, so P is equal to RT divided by B. So in the next I have substituted RT divided by B for the P. So it is RT outside, dV divided by V left here. Then if you integrate it, then simply work will come as RT ln B2 upon B1. If you change this natural logarithm into the simple log, then it is 2.303 RT log of B2 upon B1. Or simply B2 is the final volume and V1 is the original volume. So whenever expansion takes place, it is the work done given by it is RT natural logarithm and the ratio of the final volume divided by initial volume. In case it is isothermal reversible expansion of the gas is there. What is the work done in case of the adiabatic process? In adiabatic process, no exchange of heat takes place, so Q it is being taken as 0. So substituting 0 here, it is equal to dE plus W. From here, change in internal energy that is equal to minus W. Minus and plus sign, usually they are noticed whether work is done by the system or work is done on the system. So mostly they are for that notations, and simply we will neglect this minus sign here. Now work will be equal to DE, change in internal energy. जो भी वर्क होगा वो किसकी एक्सपेंस पे होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे. चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या बताया था मैंने कल आपको कि या पिछले लेक्चर में, कि जो भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर कितना अल्टर करता है वो टेम्परेचर ही चेंज इन एनर्जी है. सिंपली DE is taken as Cv upon dt. Cv is the specific heat at constant volume. Cv is defined as Cv, specific heat. It is heat divided by change in temperature. And at constant volume, that heat is equal to change in internal energy. So I am substituting for dE as Cv dt. And then whether to integrate it or simply write dt means change in temperature. That is the final temperature minus initial temperature. So work that is in the adiabatic process is equal to Cv multiplied by T final minus T initial. So that is the work done for the adiabatic process. Why we are discussing this? We are discussing this because we need these directly to be substituted in calculating or in discussing the Carnot heat engine. So what is that Carnot heat engine? It is again related with the second law of the thermodynamics. So prior to discussing the second law of thermodynamics, we have to discuss the Carnot cycle. Why we are going to focus ourselves now on the second instead of the first, as first that is the basic law of the thermodynamics. अब आगे कैलकुलेशन में देखोगे जितने भी लॉज हैं वो पहले के ऊपर ही बेस्ड हैं, यानी फर्स्ट स्टेप फर्स्ट लॉ है, उसके बाद
जो उसमें कमी पेशी बची उसके अकॉर्डिंगली सेकेंड लॉ, कोई फ्लॉज बचते हैं उसके अकॉर्डिंगली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो वो पोस्टुलेटेड है। वाई वी नीड इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है वो इक्विवेलेंस शो करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इट इज नॉट गोइंग टू पुट द एरो मीन्स कन्वर्जन, कि किस साइड को जो है वो प्रोसेस जो वो फ्लो होगा या स्पॉन्टेनियस होगा और किस साइड को स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल केस दैट as the water is running down the hill, that's okay. When it is at the height, its potential energy is more, and when it is coming down, its potential energy is becoming less, or it is being converted into the kinetic energy. So there is a sign of spontaneity of the process from the uphill to the downhill. First law also says that similar is possible if we want to lift the water from the down to the upside. So reconverting kinetic energy into potential energy, but everybody of us know that that is not possible at all until unless you are using some external agency to lift the water from down to the upside. So that is not giving a direction regarding the flow of the energy, or that is not giving exact way to say to which side the process is spontaneous. Another main thing is there. In first law it is being said that Q that is equal to change in internal energy plus some work done. इसका मतलब है कि जो भी आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे वो थोड़ा सा वर्क में चेंज होगी और थोड़ा उसका इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम का चेंज करेगी। तो इसमें भी इक्विवेलेंस होना चाहिए कि अगर आप वर्क करते हैं तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाए, और अगर हीट सप्लाई करते हो तो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, और 100% कन्वर्जन होना चाहिए। It has been seen mostly that whenever work is done, then it can be converted into 90% into heat. जो भी वर्क आप करते हो उसको 90% हीट में जो वो कन्वर्ट किया जा सकता है। But on the other hand, if heat is supplied to the system, only 25% of it can be converted into the work. Remaining 75% that is being lost. So there is no equivalence between the heat and work is there, as it is being stated by the first law of the thermodynamics. So that is why we need the second law. In order to formulate it, we need to discuss first Carnot cycle. What is Carnot cycle? Again, I am starting from the first law. First law we have discussed that whenever the heat is supplied, it is being used or utilized to change the internal energy and in doing some work. If we want totally to convert the heat into work, then we have no use of changing the internal energy. कि हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम में हमने हीट सप्लाई की, वो सारी की सारी जो है all of that is being converted into work and no change of internal energy should take place. तो ऐसा तो कभी सिस्टम में होगा नहीं कि हाँ जी आप इंजन है कोई, उसमें पेट्रोल बर्न कर रहे हैं, तो पेट्रोल बर्न करने से क्या होगा, पेट्रोल जब बर्न करोगे तो पेट्रोल बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, वो थोड़ा सा इंजन को गर्म करेगी, थोड़ा सा हीट जो वो सराउंडिंग में जाएगी, कुछ ही पार्ट उसका जो किसमें कन्वर्ट होगा, व्हील को टर्न करने में कन्वर्ट होगा। सो वी डोंट नीड दिस DE पार्ट, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विच इज कॉजिंग चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द whatever the system is there or whatever the surroundings are there, उसका जो टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो हमें DE की जरूरत नहीं है। हाउ टू इरेडिकेट DE को इस तरह से इरेडिकेट किया जा सकता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस ले लें। साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा होता है कि आप इनिशियल कंडीशन से चलते हैं और दोबारा वापस आके फिर इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। सो when starting point and ending point are same, so this means state of the system remains same. So DE change in the internal energy should be equal to 0. पहले भी टेम्परेचर उसका 80 डिग्री था, you follow some process, again you are returning to the 80 degree. It means there is no change in the temperature, so no change in DE. So that type of conditions can be prevailed if we take a cyclic process. That is why first of all it is being named as a Carnot cycle. क्या बोलते हैं इसको, Carnot cycle. तो साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इट मीन्स Q इज इक्वल टू टोटली वर्क.
So whatever heat will be supplied, it must be converted into the work. इसमें कुछ एक प्रोसेसेस हैं जो ये लिस्ट मैंने नीचे दे रखी है. इस लिस्ट में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस, एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस. ये 4 प्रोसेसेस जो वो सामने मैंने रखे हुए हैं. इसमें साइक्लिक बनाने के लिए अगर एक्सपेंशन किया है तो वापस इनिशियल कंडीशन आने में थर्ड स्टेज पे कंप्रेशन भी है. एडियाबैटिक एक्सपेंशन है गैस की, तो साइमल्टेनियसली 4 स्टेज पे एडियाबैटिक कंप्रेशन भी है. यानी जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उसको रिटर्न बैक भी कर रहे हो. दिस मीन्स दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस. दैट इज बाय 4 प्रोसेसेस: एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, adiabatic expansion, adiabatic compression of the gas that is being discussed there. So that 4 processes are there in the Carnot cycle. Carnot is the name of the scientist. He was actually an engineer, सादी कार्नट. उसने ये जो डिजाइन किया और थ्योरेटिकली जो है वो उसने स्पेसिफाई किया है कि टोटल आप हीट को जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. So this is the first process here. See, it is the volume. This is a simple cylinder. There is a frictionless piston over it which is movable, and this is volume of the gas. Initially it is B1, and temperature of the system it is T2, B1 T2. So isothermal expansion. Suppose some heat that is being supplied to the system. So there is a source फ्रॉम वेयर द हीट मस्ट बी सप्लाइड. तो ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो कंडक्टिंग होना चाहिए, बाकी वॉल कंडक्टिंग नहीं होनी चाहिए, सो दैट हीट कैन बी सप्लाइड टू द सिस्टम. तो सोर्स से जो वो हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम को, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर देयर इज ए एक्सपेंशन ऑफ द गैस दैट इज बीइंग टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 एंड T2. अगर आप पिस्टन मूव नहीं करेगा तो गैस का टेम्परेचर राइज हो जाएगा. इसीलिए टेम्परेचर को फिक्स रखने के लिए या कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, पिस्टन जो है वो मूव करेगा. सो पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड, सो वॉल्यूम बिकम्स B2 एंड टेम्परेचर बिकम्स T2. इसको वैसे B1 T1 भी लिया जा सकता है, लेकिन आगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो अगर T1 लेंगे तो T0, और T0 जो है वो ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर लगता है. इसीलिए यहां पर वेरिएशन करके जो है वो B1 इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर T2 लिया गया है, और आगे इसका वॉल्यूम जो एक्सपेंशन से B2 में कन्वर्ट हो गया, एंड टेम्परेचर रिमेन्स सेम, इट इज T2. डाउनवर्ड हियर इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस. व्हाट मीन्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन? अब आपने सोर्स से इस सिलेंडर को रिमूव कर देना है, जो ऊपर सोर्स था. सो नॉट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम दैट सोर्स, एंड दिस सिलेंडर इट इज प्लेस्ड ओवर एन इंसुलेटिंग सरफेस. एक सरफेस है जो इंसुलेटिंग, उस सरफेस के ऊपर जो वो प्लेस कर दिया. नाउ गैस विल एक्सपेंड इट्स ओन. तो गैस जो वो अपने आप जो वो एक्सपेंड करेगी. अब क्वेश्चन ये है कि जब तो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं देन इट्स ओके, फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल. ही इज सेइंग दैट whatever is the heat supplied is going to change the internal energy of the system as well as in doing some work that is being utilized. तो पिस्टन मूव कर रहा है तो वर्क जो है वो पॉसिबल है. यानी वर्क मीन्स व्हाट, द पिस्टन इज मूविंग टुवर्ड अपसाइड, इट इज मूविंग अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, सो वर्क इज डन. नाउ व्हाई द गैस इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑन इन एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन. सॉरी, जो सेकंड केस है इसमें खुद गैस क्यों एक्सपेंड करेगी? अब एक बात है, आप सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो यहां पर, कि मान लो जो ऊपर वाला केस है इसमें जो है वो एक्सपेंशन होती है, तो एक्सपेंशन का ये मतलब नहीं है कि पिस्टन जो मूव कर गया वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा. इट विल कंटिन्यू टू फ्लो और इट विल कंटिन्यू टू मूव आफ्टर सर्टेन टाइम इवन यू रिमूव द सोर्स ऑफ हीट. जैसे आपने सिंपल किसी चीज पे कोई चीज मान लो बॉयल करने के लिए कि वाटर बॉयल करने को रखा हुआ है, तो ऐसा तो होता नहीं कि आपने स्विच ऑफ किया और वहां पर वाटर जो है वो एकदम बॉयल होना बंद हो गया. दैट विल टेक सम टाइम, थोड़ी देर तक. तो उसी तरह जो पिस्टन मोशन में आया है वो पिस्टन जो इमीडिएटली स्टॉप नहीं हो जाएगा, दैट विल कम टू स्टॉप आफ्टर ए सर्टेन टाइम. तो वो अपने आप कब तक मूव करेगा? जब तक वो जो फ्लो फर्स्ट एक्सपेंशन का मेंटेन है वो एंड अप नहीं हो जाता है. लेकिन अब सोर्स ऑफ हीट नहीं है,
सोर्स ऑफ हीट नहीं है तो उससे क्या होगा कि वॉल्यूम उसका एक्सपेंड करेगा, सो वॉल्यूम इट इज चेंजिंग फ्रॉम B2 टू B3। लेकिन सोर्स ऑफ हीट नहीं है तो टेम्परेचर उसका फॉल कर जाएगा T2 टू T1। टेम्परेचर क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा T2 टू T1 बिकॉज गैस इज एक्सपेंडिंग इट्स ओन, अपने आप जो गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड हियर, इट इज upper portion, see here. Now in this case it is isothermal compression of the gas, means gas will compress isothermally, so some heat it will be lost from the system। अगर हीट लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा। और वर्ड क्या है, आइसोथर्मल, मींस टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर तभी सेम रहेगा कि कंप्रेशन से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट क्या आ जाए, बाहर आ जाए। ये कंप्रेशन से हीट प्रोड्यूस होना और एक्सपेंशन से कम होना क्या होता है, जब भी मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बनती है। व्हेनेवर द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड व्हेनेवर द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस देन व्हाट हैपेंस, मॉलिक्यूल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, द बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड दैट रिक्वायर्स हीट, क्योंकि किसी चीज को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी जो वो रिक्वायर्ड होगी, तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो वो फॉल करता है। तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल करेगा और कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आइसोथर्मल कंडीशंस बनाने के लिए वो हीट जो है सिस्टम की, वो सिस्टम से बाहर आनी चाहिए। सो सम हीट इज Q1 दैट इज लॉस्ट फ्रॉम द टेम्परेचर दिस सिलेंडर टू द सिंक। नो फर्स्ट केस था तो उसमें मैंने Q2 लिखा था, यहां पर Q1 लिखा है। एक्चुअली जो सिस्टम है कितनी हीट ट्रांसफर होगी और कितनी नहीं ट्रांसफर होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। किसके ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। मान लो दो सिस्टम है, ठीक है, या दो हीटर हैं, एक 400 डिग्री पे ऑपरेट कर रहा है और एक 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट कर रहा है। ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो जो है ज्यादा हीट एक्सचेंज करेगा और जिसका टेम्परेचर कम है वो कम हीट जो वो एक्सचेंज करेगा। सो पिछले वाले केस में T2 टेम्परेचर था, दैट वाज हायर, सो एक्सचेंज ऑफ हीट वाज Q2। हियर टेम्परेचर इज लेस T1, सो एक्सचेंज ऑफ हीट इज अगेन लेस। ऑलवेज रिमेंबर how much heat is transferred, it depends upon the what is the temperature of the system, what is the temperature of the system। so the system it moves from B3 to B4, compress हो गया तो B3 वॉल्यूम से B4 वॉल्यूम आ जाएगा, and temperature will remain same because heat it is lost from the system to the sink, and that is the last process here। जैसे फर्स्ट केस में था कि एक बार जो पिस्टन मूव कर गया वो इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगा, यहां पर भी अगर एक बार कंप्रेशन फॉलो हो रही है दैट विल नॉट स्टॉप इमीडिएटली। व्हाट विल हैपन, इट विल टेक सम टाइम टू स्टॉप। अप टू दैट इट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सिंक, सिंक से इसको रिमूव कर दो, एंड इट इज प्लेस्ड ऑफ द इंसुलेटिंग सरफेस। इंसुलेटिंग सरफेस पे रखेंगे तो कोई भी हीट जो वो सिस्टम और सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होगी। सो नाउ गैस विल कंप्रेस, so compression will continue until it will change to the original volume B1, starting का volume B1 था, and temperature rises to the T2। so these were the initial conditions, so that is the cyclic process। so the cyclic process contains two isothermal part, it contains two adiabatic part। so that is the graphical representation of this system। see here, it is the starting point here B1 T2, that is the starting point। then there is a curve, this curve it is a isothermal curve, it is PV curve you can say। so here it is a isothermal curve because temperature it is T2 and T2 remain same, but expansion takes place, so B1 changes into B2। आइसोथर्मल केस में एक्सपेंशन ज्यादा है तो B1 और B2 में काफी ज्यादा गैप है। जो एडिएबेटिक पार्ट है उसमें भी थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा। ये देखो यहां पर ये कम वॉल्यूम वैल्यू है, ये ज्यादा वॉल्यूम वैल्यू है, बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
So that is the first adiabatic part. It is adiabatic expansion. That is the compression part. It is the isothermal compression of the gas. And this last one, it is the again adiabatic compression of the gas. So that is the graphical representation regarding the Carnot cycle. Now let us see the calculations here. In case it is the isothermal expansion of the gas, Q2 it is the heat supplied to the system. I think not visible. If it is, now it will be visible. Q2 is the heat supplied to the system, this one. So that is equal to work done W1, that is RT ln B2 upon B1. It is the final volume divided by the initial volume. So initial volume is B1, it is, and final volume is B2. T2 is the temperature at which it is occurring. Q2 is the heat supplied to the system. Work is done by the system, that is why it is being taken as negative. So Q2 is equal to minus W1 is equal to RT2 ln B2 upon B1. In the third case, it is the Q1 heat that is being supplied by the system. W3, that is the work done on the system because it is being compression. It is occurring at isothermal temperature T1. Final volume was B3, initial volume was B2. So because of that, the W3 third work, it is RT1 ln B3 upon B2. जो सेकेंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन का गैस वर्क है W2, इट इज इक्वल टू CB स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. T1 फाइनल टेम्परेचर है माइनस T2 दैट वाज द इनिशियल टेम्परेचर. एंड फोर्थ वर्क, इट इज अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन. It is CB, final temperature it is T2, initial temperature it is T1, so it is T2 minus T1. Now what is the total work done here? Let us see. So the total work, it comes to be W1 plus W2 plus W3 and plus W4. So substituting the values, first isothermal expansion, then adiabatic expansion, then isothermal compression, and last it is CvT2 minus T1. It is the adiabatic compression of the gas. If you clearly check these two, it is CvT1 minus T2, it is CvT2 minus T1. ये दोनों जो है वो T1 माइनस T2 कर दो तो एक नेगेटिव हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा और दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट कर जाएंगे. इसका मतलब जो भी एडियाबेटिक पार्ट था वो सारा